Good afternoon, students. Today we will discuss about paper 16, Understanding the Self, Unit 2, Philosophy and Psychology of Yoga. Chapter 2, Concept of the Prakriti and Purusha, Concept and their relation with each other in Sankhya philosophy. प्रकृति एंड पुरुष कंसेप्ट और सांख्य फिलोसफी में उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. First of all, we have to know about Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is propounded by great sage Kapil, and his work is known as Sankhya Sutra, which include 6 chapters and 526 sutras. Sankhya is one of the oldest orthodox systems of Indian philosophy, as its references are found in Shruti, Smriti, Ramayana, Mahabharata, and other ancient literary creations. Sankhya derives from a Sanskrit word Sankhya, which means number, Sankhya. It mentions 25 ultimate principles in creations which justify its name, that is Sankhya philosophy, Sankhya Darshan. Another meaning of Sankhya is right knowledge. That is, Sankhya tries to know the knowledge of reality for ending all the pains and suffering and attain liberation. It is intellectual and theoretical in nature. It is a metaphysics of dualistic realism. Sankhya philosophy is dualistic because it speaks about only 2 types of ultimate realities, namely Purusha, that is spirit, and Prakriti, matter, nature. संख्या फिलोसफी ड्यूलिस्टिक है क्योंकि यह सिर्फ 2 अल्टीमेट रियलिटी के बारे में ही बात करता है, दैट इज पुरुषा एंड प्रकृति. संख्या shows an evident dualism between Purusha and Prakriti and further maintain the plurality of the Purushas. Sankhya's philosophy states that liberation from the birth, life, death, rebirth cycle as the final goal of human life. सांख्या फिलोसफी कहती है कि मनुष्य का जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है. According to Sankhya philosophy, there are 25 ultimate principles, realities और तत्व. सांख्या फिलोसफी के अकॉर्डिंगली 25 अल्टीमेट तत्व हैं जिनको उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है. सांख्या फिलोसफी 2 अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात करता है, पुरुषा एंड प्रकृति. तो पुरुषा में 1 तत्व आ गया और प्रकृति 24 तत्वों के बारे में बात करता है. तो प्रकृति किन किन के बारे में बात करता है वो इस प्रकार है. फर्स्ट, महत, द ग्रेट प्रिंसिपल्स. सेकेंड, बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिंग रीजनिंग एंड कॉजेटिव इंटेलिजेंस. अहंकार, ईगो और ईगो प्रिंसिपल्स. मन, द फिजिकल माइंड और ब्रेन. द 5 पंच इंद्रियाज, sense organs. The 5 karm indriyas, the organs of action. The 5 tanmatras, subtle elements. The 5 mahabhutas, gross elements, namely the earth, water, air, fire and space. Now we will discuss about the concept of Prakriti and Purusha. First, Prakriti, nature. Prakriti means nature or matter. प्रकृति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और कृति. प्र मीन्स पूर्व, प्राइम. कृति मीन्स किया हुआ, डन. तो इस तरह से प्रकृति का मतलब हुआ पूर्व किया हुआ, primarily done. It means the prime matter existed before the construction of the world. सृष्टि की रचना से पूर्व विद्यमान पदार्थ को हम प्रकृति कहते हैं.
It is the first and foremost cause of all the gross and subtle objects. It is the materialistic cause of the world. यह materialistic cause of the world. Materialistic means matter. प्रकृति क्या है? Matter. Matter क्या है? Anything that occupies space and have some mass. तो पदार्थ जो हमारे पास वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो इट इज द मटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ द वर्ल्ड. इट इज नॉन सेल्फ, इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड विदाउट कॉन्शियसनेस. मीन्स इसमें यह शाश्वत है, सत्य है. इट गेट्स अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुरुषा, सेल्फ और स्पिरिट. कहने का मतलब है कि प्रकृति को पुरुषा अफेक्ट करता है और ये इन्फ्लुएंस होता है किससे? पुरुषा, सेल्फ और स्पिरिट से. प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 गुणास. गुण, गुण का मतलब है क्वालिटी और नेचर. बट इन सांख्य फिलोसफी गुण हम बात करेंगे किसी पार्ट के बारे में या किसी कंपोनेंट के बारे में. तो प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बना है, सत्व, रजस एंड तमस. सत्व include the qualities like happiness, pleasure, compassion, being good, illuminating and constructive. Rajas include qualities like pain, suffering, chaos, impulsiveness. Tamas include qualities like inactivity, lethargy, darkness, ignorance, destruction and negativity. Now we will discuss about the Purusha. Purusha, spirit, soul, Ishwar. Purusha is made up of 2 words, Puru Jama Usha, which means eastern dawn, Purvi Sashani, which signifies the creative consciousness that sets in motion the entire creation process. कहने का मतलब है पूर्वी सैशनी, जो बताता है ऐसी शक्ति जो सारी सृजन प्रक्रिया को चलाती है. पुरुषा इज कंसिडर्ड एज इसेंशियल कॉज ऑफ क्रिएशन व्हाइल प्रकृति इज द मटेरियल कॉज ऑफ क्रिएशन. पुरुषा, आत्मा को इसेंशियल कॉज कहा गया है और प्रकृति को हमारे पास मटेरियलिस्टिक कॉज कहा गया है, मैटर. Purusha, spirit, is not depends upon Prakriti, but Prakriti is dependent on Purusha. Purusha, spirit, आत्मा प्रकृति पर निर्भर नहीं है, परंतु प्रकृति is dependent on Purusha. प्रकृति आत्मा पर निर्भर रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक चुंबक में एक आकर्षण, लोहे को आकर्षित करने की शक्ति होती है. दैट मैग्नेट जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लोहे को अपनी तरफ. बट अगर वहां पे लोहा प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वो एक पैसिव स्टेट में है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है. बट जैसे ही वह लोहे के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, सक्रिय हो जाता है. तो उसी तरह से है कि पुरुषा के कांटेक्ट में प्रकृति वैसे तो पूर्व विद्यमान है, प्राइमरली डन है, सृष्टि की क्रिएटिव सृष्टि की रचना से पहले ये प्रेजेंट है, बट डिपेंड करती है किस पे, पुरुषा पे. जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है. उसी तरह प्रकृति जो है वो पुरुषा पर डिपेंड है. द सेकेंड अल्टीमेट रियलिटी एडमिटेड बाय द सांख्य फिलोसफी इज द सेल्फ और द पुरुषा, that is pure consciousness, चेतन. It is the spiritual principle, आध्यात्मिक प्रिंसिपल है. पुरुषा इज एटर्नल, अलौकिक है. समथिंग दैट डज नॉट क्रिएट, ऐसी कोई चीज जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, अनक्रिएटेड है. पैसिव है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, कोई डेफिनेट नहीं है. प्योर है, शुद्ध है. कॉन्शियसनेस, चेतन. एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ पुरुषा मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल. हम सबको सेल्फ की एग्जिस्टेंस, पुरुषा की एग्जिस्टेंस को एडमिट कर लेना चाहिए.
इनफैक्ट नो वन कैन डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज सेल्फ। कहने से अभिप्राय है कि कोई भी अपने सेल्फ, अपनी आत्मा से, आत्मा की एग्जिस्टेंस को निकार नहीं सकता। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा। प्रकृति और पुरुषा में क्या रिलेशन है? प्रकृति और पुरुषा दोनों एक सिक्के के दो साइड्स के बारे में, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, इस तरह से हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलोसफी, पुरुषा एंड प्रकृति आर टू बेसिक, opposite, independent and eternal principles that are the main cause and reason behind the human existence। कि प्रकृति और पुरुषा दो बेसिक अपोजिट प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए मुख्य कारण है। इनके बीच में रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है। तो वी कैन से कि दीज टू आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। Purusha stands for supreme spirit, Prakriti stands for matter. Purusha, spirit, is the first principle of Sankhya. So, Prakriti is the second principle of Sankhya. Purusha is the effective cause of the world, Prakriti is the materialistic cause of the world. Purusha is neither produce nor does it produce. पुरुषा ना तो प्रोड्यूस होता है, ना ही यह किसी चीज को प्रोड्यूस करता है। प्रकृति इज नॉट प्रोड्यूस्ड बट इट प्रोड्यूसेस। प्रकृति को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो अनदेखी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट उसमें जो प्रेजेंट चीजें हैं उनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। बट इट प्रोड्यूसेस, ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। पुरुषा इज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, तो प्रकृति इज द प्रिंसिपल ऑफ मैटर। ये मैटर के बारे में बात करता है, ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। पुरुषा इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रकृति बट प्रकृति इज डिपेंडेंट अपॉन पुरुषा। पुरुषा इज निर्गुणा, निर्गुण है। पुरुष क्या है? निर्गुण है। आत्मा में कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। बट प्रकृति इज मेड अप ऑफ थ्री गुणा, सत्व, रजस और तमस। पुरुषा रिप्रेजेंट्स द मेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, तो प्रकृति रिप्रेजेंट्स द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। पुरुषा इनएक्टिव है, अनचेंजेबल है, यूनिवर्सल है, इटर्नल एंटिटी है, पैसिव है, एब्सोल्यूट, इनफाइनाइट, प्योर, कॉन्शियसनेस, इंडिस्ट्रक्टिबल और वी कैन से सेल्फ, ईश्वर। प्रकृति एक्टिव है, चेंजेबल है, अर्थली है, एटर्नल एंटिटी है, डायनामिक, चेंज होती रहती है, एब्सोल्यूट, इनफाइनाइट है, कॉज एंड एक्टिव, मटेरियलिस्टिक है और नॉन सेल्फ। अकॉर्डिंग टू सांख्या, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। तो सांख्या कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न तो हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों मिलके हमारे पास सृष्टि की संरचना करते हैं। लिबरेशन इज द फाइनल गोल एंड डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। व्हेन पुरुषा अचीव हिज गोल and destination, that is the liberation, with the help of prakriti, then the relation of the purusha with prakriti ends। जब पुरुषा प्रकृति की सहायता से अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, that is मोक्ष, तो पुरुषा और प्रकृति के सबका संबंध समाप्त हो जाता है। तो that's all for today. Thank you. Stay safe. Stay home.